Bonjour, Ms. Etudiant. How are you all? Hope you all are doing very well. So I know your midterms are approaching, so that's why in today's video I am again teaching you Metilito Convenable. That is your all tenses together in one frame. All right. So beta, if you want to score full marks in your tenses question, the first step is to learn all the keywords or hints. Then it will be very easy for you all to identify in a particular sentence which tense you have to use. So we can identify only on the basis of beta keywords or the hints given. All right. So these are the keywords and hints. You can just note down or take the screenshot as per your convenience. So the first tense you all have learned in your previous classes, it's your present tense. Present tense, we have three types of verbs, right? ER ending, IR ending and RE ending verbs. You should know the endings of all these three types of verbs. Okay. Then what about the irregular verb? What about irregular verbs? There are so many irregular verbs. I know it's very impossible. It's really not possible for us to learn all the irregular verbs. So what I have done, beta, in the next slides, if you can turn the slides, I have mentioned all the most important irregular verbs. So you can just learn these irregular verbs on the priority basis. Then you will be able to score full marks. Okay. Chaliye. So present tense, you can easily do that. Second beta, we have imperative. Imperative. How to do this particular tense? So imperative का एक ही कीवर्ड है कि इसका कोई कीवर्ड ही नहीं होता. ठीक है. imperative के हमेशा डैश से पहले subject will be missing. There will be no subject before dash. So you easily get to know that in this particular sentence, I have to use imperative. Okay? So this is the only keyword, or you can say the trick to remember that in this sentence, if before dash nothing is written, no subject is given, then you have to use imperative. So imperative is your that tense in which you give order, command, or you request somebody or someone, or you give a suggestion, advice to anyone. Okay, so we use this tense only with three forms: tu, nu and wo. Okay, all the conjugations will be of present tense only. Okay, but you have to take care of very important thing, that in present tense with er verb, with tu the ending is es at the end, but in imperative you have to cut s. So for example, if I have to write tu parle in present tense, so it will become parle only in imperative. Okay, all right, let's move ahead. Then in imperative, they will ask you about the pronominal verbs, how to conjugate pronominal verbs beta in imperative. So again, I told you have to use the conjugation of present tense only. With you, let's take a verb, so brosser, to brush yourself. Okay, tu te brosse. This is the conjugation in the present tense of a pronominal verb. Then we have nous brossons, and then with vous we have vous brossez. All right. Now, how to do this particular verb in an imperative? Let's see. I told you subject should not be there. Okay. It is an er verb. With er verb, we have to drop the s. We have to cut s. Now, the brosse changes to brosse tua. Okay. Just remember this. Brosse tua. They will definitely ask you if this tense is coming. They can ask you the pronominal verbs or the negation of pronominal verbs or the exceptions. We will be doing further. Okay. Then we do the inversion with nous. Nous brossons changes to brossons, nous. Then beta, vous brossez changes to brossez, vous. So this is how you form positive pronominal verb in imperative sentence or tense. Okay. Now what if I get a pronominal verb in negative? Then how to conjugate it? So in negative beta, you have to remember we do not do the inversion. So कैसे करेंगे? We simply write न त brosse pas. That's it. Subject नहीं है. इस portion से पहले you have to place न and then place pas. Again with nous brossons, we will write न
nous brossons pas. Okay, and at last, vous vous brossez, ne vous brossez pas. With negative, we do not invert these verbs. Alright. Okay, let's see now what are the exceptions. Every tense, you know, has few exceptions. Imperative has only 4 exceptions, beta. Être, avoir, savoir, and vouloir. Okay, these are the only 4 exceptions for imperative tense. Again, we have to conjugate with only tu, nous, and vous form. Être changes, so you simply have to learn beta. Soit, soyons, soyez. Okay, soit, soyons, soyez. Avoir changes to a, ayons, ayez. Then savoir changes to beta sache, sachons, sachez. And last, vouloir changes to beta veuillez. Then veuillons. And at last, it's veuillez. So these are the 4 only exceptions of imperative. You should learn this. Okay, in board exams, they will ask you the question related to this only. Okay, so we have done present tense and imperative. Let's move to the another tense, which is very important to learn or memorize, is passé composé. Simple past tense, you can say. Always remember, beta, passé composé is always conjugated with either être or avoir. Okay, either être to be used or avoir to be used. Now, être and avoir of which tense? Of present tense only. Être of present tense or avoir of present tense. Now, how do I get to know when to use être and when to use avoir? Okay, so this is there is a very simple trick, beta. The verbs comes under Dr. Mrs. P. Vondertromp. Dr. Mrs. P. Vondertromp. They all are conjugated with être only. All right. Plus, all the pronominal verbs are also conjugated with être only. Rest, all other verbs are conjugated with avoir. Okay. So this is the simple trick you have to learn. And now what is this Dr. Mrs. P. Vondertromp? I have already shared the whole list of these verbs as well as their past participle in my further slides. You can just go ahead and have a look on it. Okay. Chale, let's do how to form passé composé, how to do the formation. So subject will be given to you. If you have to check the verb given in the bracket comes under Dr. Mrs. Vondertromp or not. If it comes, you have to conjugate with être. If it doesn't, you have to conjugate with avoir. Okay. Then you have to use beta PP. PP is your past participle. Participe passé, we called it in French. What is this PP? It is your second form of the verb only. For example, in English, you learn now that go ka second form is went, do ka did. Like in French, you have to form the past participle. Okay, I'll teach you how to form it. Plus, with être, do remember you have to use accord. But I have checked many papers. Students क्या mistake करते हैं? वो accord लगाना भूल जाते हैं. Half mark cut हो जाएगा. Don't do this silly mistake. You have to remember. Be very, very attentive while preparing, while doing this particular question. Okay. All right. Subject plus avoir plus PP. With avoir, we do not use accord. Now, what are accord? Accord means if L is written, you have to put an extra E with your past participle. Okay. If else is written, you have to put E and S. So, they changes as per the gender. All right. Now, how to form past participle? For all the regular verbs, regular ER verbs, what we do, we cut the R and we put accent on E. For example, parler. Parler means to speak. So, past participle spoke is parler. Okay. Then, for IR verbs, we only cut R. All right. For example, we have finir. The past participle of finir is fini. Okay. And with RE verbs, we cut RE and put U. For example, we have a verb vendre. We cut RE and we add U. Vendre. The past participle becomes vendu. Okay. So this is your passé composé. So you have to
learn Dr. Mrs. P want a tramp. All right. Okay. Now let's move ahead with another tense, that is imperfect. Imperfect is beta your past continuous tense, as you called in English. Past continuous tense. Okay, beta. So now how I get to know that either in a sentence I have to use passé composé or imperfect, है ना? So I'll tell you, imperfect you have to follow 4 rules. First, if you're talking about any unfinished action, you have to use imperfect. Any unfinished action we are talking about, you have to use imperfect. Okay. Second, if you are describing anything in past description, either you are describing any person or an object or anything, you have to use imperfect. Okay. Then very important, past weather description. If you are describing weather in past, you can write weather description in past. If you are describing weather in past कि कल मौसम बहुत अच्छा था, it was pleasant yesterday. ठीक है, so we have to use imperfect. Last में you have to translate. If you think that was were आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर सेंटेंस में तो was were मुझे पुट करना चाहिए, use imperfect. ठीक है. Now how to form imperfect? Imperfect form करने के लिए बेटा we have steps. First, take new form of present tense. Okay, we take the new form of present tense. The second step is cut ONS, and third step is add the endings. Let me take a verb parler again. Okay, I'll take the new form of parler in the present tense. The new form is parlons. What I have to do, I have to cut ONS. So we write parle, okay. Then we have to add the endings. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, and at last AIENT. Okay. Everything is written in this video. Okay. If you can, I will show you. Let me explain you all the tenses, then I will show you. Okay. So this is your imperfect. No, wait. What is the exception of imperfect? You know, there is only one exception that you have to learn. That être. Être changes to et in imperfect. So être becomes et, and then you have to add the endings of imperfect. That is AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Okay. तो आई होप imperfect भी आपको अच्छे से समझ आ रहा है. आपको बस देखना है पास्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं या पास्ट में किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इवन किसी पर्सन को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम imperfect यूज़ करते हैं. पास्ट की हैबिट्स यू कैन राइट. वी आर लेफ्ट विद पास्ट हैबिट्स. पास्ट हैबिट्स इसके लिए भी हम बेटा imperfect यूज़ करते हैं. पास्ट हैबिट जैसे बचपन में मैं डेली मंदिर जाया करता था या जाया करती थी, तो मेरी पास्ट की हैबिट है. अब नहीं मैं जाती, बचपन में मैं जाती थी. आई यूज टू गो टू टेम्पल, है ना. तो हम योग imperfect यूज करेंगे. ठीक है. सो आई होप दिस टेंस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. चलिए, नाउ लेट्स मूव टू अनदर टेंस, इंपॉर्टेंट टेंस, दैट इज योर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल. नाउ हाउ टू कॉन्जुगेट दिस टेंस? With all the ER verbs, we have to only add the endings of avoir. Okay, we have to use the avoir की conjugation. Okay, then with all the IR verbs, we have to again add avoir की conjugation. Then with all the RE verbs, we have to cut E. We have to cut E beta, then we have to use the avoir की conjugations. Now how to do so? Parler, ER verb, we write parler as it is in infinitive form, then we add the ending of avoir. So with je it is parlerai, with tu it is parlerai, parlera, with il,
it is parlera. With nu, it is parlero, not avo. आवो नहीं लिखना है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में नू के साथ avoir में आवो आता है, नू जावो. नो, we only take ons. Again, with vous, parlere, and with ils and else, parlero. Right the parler in the infinitive form and add these endings. Do the same with all the ir ending verbs and with the re ending verbs, but you have to cut e, then you have to put your avoir ki conjugations like vondre, vondre, vondra, and so on. Okay. Now, what are the exceptions of future simple? There are around 18 exceptions I have written in the further video. I'll show you. You have to learn those exceptions. Then you will be easily attend this future simple question. Okay. All right. Now, let's have a look on the new tenses which you are studying in class 10. You know, I am talking about pluska parfait, that is PQP, and future anterior. First of all, you have to know when to use PQP and future anterior. PQP is beta pluska parfait I'm talking about is your past perfect tense. Okay, ये आपका past perfect tense होता है. And future anterior, ठीक है, ये आपका future perfect tense है. इसमें हम क्या यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा. PQP हो या फ्यूचर अंटेरियर हो, अगर PQP की मैं पहले बात करती हूँ, पास्ट में कोई भी दो एक्शंस हुए हैं एक साथ, ठीक है, फर्स्ट एक्शन हमेशा PQP यूज करेंगे आप लोग. ओके, एंड सेकेंड एक्शन ईदर यू कैन यूज पासे कंपोजिट और imperfect, but you have to read the whole sentence, you have to translate that. Okay, same is the case with future anterior. If you are talking about two actions, not sentences, if you are talking about two actions in future, the first action will always be your future anterior and the second action will always be your future simple. Okay, so future में first action है तो future anterior, सेकेंड एक्शन है तो फ्यूचर सॉन्ग. और PQP में फर्स्ट एक्शन जो है उसमें PQP फिल करना है और जो सेकेंड एक्शन में है उसमें आप इधर यू कैन यूज पासिव कंपोजिट और इम्परफेक्ट कैन कम. दैट यू हैव टू डिसाइड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन. ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स सी हाउ टू ट्रांसलेट दीज टेंसेस. इट्स वेरी इजी इफ यू नो पासिव कंपोजिट. अगर आपको पासिव कंपोजिट आता है ना बेटा, ट्रस्ट मी, 1 मिनट में आपको फ्यूचर अंटेरियर और PQP भी आ जाएगा. कैसे देखते हैं. अभी हमने सीखा हाउ टू फॉर्म पासिव कंपोजिट. सब्जेक्ट इज गिवन, यू हैव टू चेक द वर्ब. इफ इट कम्स अंडर डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्राम यू हैव टू कॉन्जुगेट विद एत्र, देन यू हैव टू यूज द PP, देन यू हैव टू यूज द अकॉर्ड. ओके, देन सब्जेक्ट प्लस avoir प्लस PP. ऑलराइट, अभी हमने यही पढ़ा पासिव कंपोजिट. एत्र और avoir जो कॉन्जुगेशन है वो कौन से टेंस की होगी बेटा, प्रेजेंट टेंस की. ठीक है, ये हमने अभी अभी सीख लिया, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा था. अब हम आते हैं बेटा प्लस्क पार्फे पे. प्लस्क पार्फे और यू कैन से PQP इन शॉर्ट. ठीक है, सेम कॉन्जुगेशन होगी पासिव कंपोजिट वाली. कैसे, सेम फॉर्मेशन. सब्जेक्ट आपको दिया होगा, यू हैव टू यूज एत्र प्लस PP प्लस अकॉर्ड. अगर डॉक्टर मिसेस वॉन्डरट्राम में नहीं आ रहा, यूज avoir प्लस PP. ये तो एकदम सेम हो गया. चेंज क्या होगा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बेटा सिर्फ ये पार्ट, एत्र एंड avoir. पासिव कंपोजिट में बेटा एत्र और avoir आप प्रेजेंट का यूज करते हो, उसका खुद का नहीं है, वो प्रेजेंट टेंस से मांग रहा है. तो PQP में हम किसका यूज करेंगे, एत्र और avoir, इम्परफेक्ट का. सिंपल. ठीक है, सो इम्परफेक्ट अभी हमने पढ़ा, एत्र चेंजेस टू ET, राइट, and then we have to add the endings. तो एते याद कर लीजिए and avoir ave. so ऐसे ही आप इम्परफेक्ट की एंडिंग्स लगाएंगे, आपका ये टेंस कंप्लीट हो गया. सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी बेटा, बाकी सब कुछ वैसे ही. डॉक्टर मिसेस में आ रहा है, अकॉर्ड लगाना है, उसमें नहीं आता बेटा तो avoir के साथ सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल लगा के आप छोड़ देंगे. ठीक है, अब देखते हैं बेटा लास्ट जो आपका टेंस है, दैट इज योर फ्यूचर अंटेरियर. इसको कैसे कॉन्जुगेट करें. इसको भी सेम पासिव कंपोजिट की तरह ही कॉन्जुगेट करना है. सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट गिवन होगा,
अगर डॉक्टर मिसेज में आ रहा है एत्र, देन पास्ट पार्टिसिपल, देन अकॉर्ड। अगर डॉक्टर मिसेज वॉन्डरट्राम में नहीं आ रहा, अवॉर की कॉन्जुगेशन और पास्ट पार्टिसिपल। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना, तो हम पास्ट का एत्र और अवॉर तो यूज नहीं करेंगे, तो हमने भी फ्यूचर का कौन सा टेंस सीखा है, फ्यूचर सिंपल। तो हम एत्र और अवॉर फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे, ठीक है। एत्र जो है फ्यूचर सिंपल में होता है बेटा सर, और उसके बाद अवॉर की एंडिंग सर्रे सर्रा, और अवॉर होता है बेटा और रे औरा। इतना याद कर लीजिए, आपका ये तीनों टेंसेस वन वो में हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं निधि मैम प्लस पारफे और फ्यूचर ऑन टेबलर समझ में नहीं आ रहा। समझना क्या है, सिर्फ आप वहाँ से कंपोजर लर्न कर लीजिए, आपको फॉर्मेशन आ जाएगी। यूज़ कैसे करना है वो भी हम एक्सरसाइजेज में देखेंगे, और इस वीडियो के बाद भी मल्टीपल वीडियोज़ हम करेंगे जिसमें मैं टेंसेस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ज़्यादा आप इसमें मास्टर होते जाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गए होंगे ये टेंसेस। अब एक और टेंस देख लेते हैं बेटा, कंडीशनल्स, ठीक है। उसका कीवर्ड क्या है, उसको हम सी क्लॉज भी बोलते हैं। तो उसका एक ही कीवर्ड आपको दिखेगा बेटा, आपके सेंटेंस में सी लिखा होगा, और ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में लिखा हो, बीच में भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इसके साथ बेटा सिर्फ आपको ना 3 कंडीशंस याद कर लेनी है, 1, 2 एंड 3। क्या कंडीशन है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सी के साथ इम्पारफे, अभी हमने इम्पारफे पढ़ा ना कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, इम्पारफे इज गिवन, यू हैव टू यूज कंडीशनल प्रेजेंट, ओके। देन अगर आपको सी क्लॉज के साथ इफ प्रेजेंट टेंस इज गिवन, देन यू हैव टू यूज फ्यूचर सिंपल। ये भी अभी हमने देखा, वी हैव जस्ट डू दिस टेंस, है ना। एंड इफ विद सी क्लॉज प्रेजेंट टेंस इज गिवन, then we have to use imperative। imperative भी हमने अभी देखा, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं। अब यहाँ तो दोनों जगह प्रेजेंट टेंस है ना, तो कैसे पता चलेगा, मैंने आपको क्या बताया था, imperative में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डैश जो है उससे पहले नो सब्जेक्ट विल बी गिवन, कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, समझ जाना मुझे imperative यूज करना है। अगर डैश से पहले सब्जेक्ट है और प्रेजेंट टेंस आपको लिखा हुआ है उस सेंटेंस में, यू हैव टू यूज फ्यूचर सिंपल। That's it. So हमने इम्पारफे सीख लिया, प्रेजेंट टेंस देख लिया, इम्पेरेटिव देख लिया, फ्यूचर सिंपल देख लिया। नाउ हाउ टू कॉन्जुगेट कंडीशनल प्रेजेंट। सो इसके भी स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं, देखते हैं कैसे करना है। फॉर्मेशन ऑफ कंडीशनल प्रेजेंट। सो बेटा फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द न्यू फॉर्म ऑफ फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। हमने इम्पारफे जैसे किया था ना, इम्पारफे में हम क्या लेते थे, न्यू फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। कंडीशनल बनाने के लिए आपको लेना है, कंडीशनल प्रेजेंट बनाने के लिए न्यू फॉर्म ऑफ फ्यूचर सिंपल, ठीक है। जैसे मैंने एक वर्ब ले ली पार्लरों, ये फ्यूचर सिंपल में मैंने लिखा है इसकी न्यू फॉर्म में। अगेन सेकेंड स्टेप इज टू कट ONS, सो लेट मी कट ONS, ठीक है। नाउ व्हाट आई लेफ्ट विद पार्ले, एंड थर्ड स्टेप इज टू add the endings of imperfect। अभी हमने imperfect की endings देखी, AIS, AIS, AIT, है ना, उसको आप यहाँ पर पार्लरे आप ऐड कर दीजिए, आपका कंडीशनल्स भी हो गया, ठीक है। सो चलिए, ये सारे टेंसेज हैं फ्यूचर प्रॉज, आई होप आप सबको आता है अच्छे से। फिर भी हम देख लेते हैं, मैंने आगे स्लाइड्स में लिखा हुआ बेटा, ये कीवर्ड्स हैं, आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, तो आपको टेंसेस बहुत इजी हो जाएंगे। देन प्रेजेंट टेंस मैंने समझाया है, उसके बाद प्रेजेंट टेंस की मैंने इरेगुलर जितने भी वर्ब्स हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने लिख दिया बेटा। देन यू कैन सी इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव के रूल्स, ओके, इम्पेरेटिव इन प्रोनोमिनल वर्ब्स, देन एक्सेप्शंस, 4 एक्सेप्शंस आई जस्ट टोल्ड यू, ओके। Then passive composer with Dr. Mrs. P. Wondertram, and all pronominal verbs will be conjugated with etre, otherwise with avoir. Okay, Dr. Mrs. P. Wondertram में ना ये जो P है ना, this P is very special. There are 2 P's. One P is पार्थिव, okay. This अलग से जो P है ना, it is very important. It is passive. ये जो passive verb है ना बेटा, ये etre के साथ भी conjugate होती है and avoir के साथ भी। Again now how do we get to know, हमें कैसे पता चलेगा when to use etre and when to use avoir। So बेटा अगर आप किसी प्लेस से पास हो रहे हैं, you have to conjugate with etre।
ठीक है, किसी भी जगह से पास हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको एत्र यूज़ करना है, अदरवाइज यू हैव टू यूज़ अवुआर। अगर आप कोई टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है, आपको यूज़ करना है बेटा दैट पर्टिकुलर केस में पासे को अवुआर के साथ कॉन्जुगेट करना है। ओके, चलिए ये है बेटा सारी डॉक्टर मिसेस पी वॉन्डरट्राम की वर्ब्स प्लस उनके पास्ट पार्टिसिपल आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए। पासे कंपोजर देखिए अगर आप अच्छे से सीख लेंगे, फ्यूचर ऑन्टेरियर और प्लस पार्फे दोनों का जो फॉर्मेशन है बिल्कुल सेम है। इम्पार्फे आई जस्ट टोल्ड यू, इम्पार्फे की फॉर्मेशंस, पासे रेसो आपको अच्छे से आता है, फ्यूचर प्रॉश, फ्यूचर सॉम्पल, देन हियर the slide. These are the exceptions of future sample. अच्छे से ये लर्न कर लीजिए, अराउंड 18 कुछ एक्सेप्शंस होंगी। देन फ्यूचर ऑन्टेरियर, प्लस पार्फे, कंडीशनल प्रेजेंट। ओके, चलिए सो लेट्स ट्राई लास्ट ईयर पेपर। अब हम देखते हैं कुछ थोड़े से कि भाई कैसे पैटर्न आता है, कैसे पेपर आता है, क्या लेवल होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव जस्ट studied, उसके बेसिस पे कैन वी और आर वी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन पेपर और नॉट। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट, सबसे पहले ना आपको ना दो चीज़ें फॉलो करनी है इफ़ यू आर डूइंग टेंसेस क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग, बेटा यू हैव टू चेक is there any keyword given in your particular sentence। सबसे पहले कीवर्ड ढूंढिए, ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप इज टू चेक इज देयर एनी अदर टेंस गिवन, कोई और टेंस में कॉन्जुगेशन हुई है या नहीं। ये दो स्टेप्स फॉलो करेंगे, सारे क्वेश्चंस इजीली होते जाएंगे। तो सबसे पहले रूल है कीवर्ड देखिए। चलिए हम कीवर्ड देखना स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड है दो, कीवर्ड है दो अ मुआ इन अ मंथ। इन अ मंथ तो फ्यूचर सॉम्पल का कीवर्ड हो सकता है ना, तो इसमें फ्यूचर सॉम्पल आ सकता है। बट मैंने आपको अभी सिखाया डैश से पहले सब्जेक्ट नहीं है। बच्चे कहेंगे मैम ये लिखा तो है सब्जेक्ट, बेटा कॉमा आ गया, सेंटेंस चेंज हो गया, ठीक है, बहुत केयरफुली अटेम्प्ट कीजिएगा बेटा। डैश से जस्ट पहले इफ नो सब्जेक्ट इज गिवन, आपको बेटा कौन सा टेंस यूज करना है, इम्पेराटिव। ओके, अब इम्पेराटिव क्यों, नू या वो के साथ होता है, हमें कैसे पता चलेगा किसके साथ कॉन्जुगेट करना है, तो हम देखेंगे कौन किससे बात कर रहा है सेंटेंस में। तो देखते हैं, माँ पेतित, पेतित मीन्स स्मॉल, किसी छोटे बेटी से कोई या डॉटर से बात कर रहा है, फेमिनिन में गिवन है। ओके, डैश अरर्स बिकॉज नू पार्टों वकॉन्स दो अमुआ। तो मुझे इतना पता चल गया कि मदर जो है वो अपनी डॉटर से बात कर रही है, या कोई भी आंट अपनी कज़न से बात कर रही है, छोटी बच्ची से बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम किसी छोटे से बात कर रहे हैं तो हम या तो ट्यू वाला यूज़ कर सकते हैं बेटा, ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स बच्चों से भी हम आप करके बात करते हैं, तो हम लोग वू फॉर्म भी यूज़ करेंगे तो एक्सेप्टेबल है। बट ट्राई टू यूज़ ट्यू फॉर्म, यू विल स्कोर फुल मार्क्स। ओके, सो एत्र वो 4 एक्सेप्शंस में से हैं, तो इसका हो जाएगा बेटा सुआ, और इफ यू राइट सोइए दे विल गिव यू मार्क्स। ओके, लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस। यस्टरडे द यंगस्टर्स ऑफ माय बिल्डिंग डैश। अच्छा, मैंने आपको बोला ट्रांसलेशन अगर नहीं भी 1% आ रही कैसे देखेंगे, सबसे पहले कीवर्ड ढूंढते हैं। इज देयर एनी कीवर्ड गिवन, यस, ईयर, यस्टरडे। यस्टरडे किसका कीवर्ड है बेटा, पास्ट का। यस्टरडे पास्ट कंपोजर का स्पेशली कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड देखकर है ना, सिर्फ पास्ट कंपोजर फिल मत करिएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप मैंने देख लिया, ईयर। ईयर का मतलब है कोई पास्ट का ही टेंस आएगा। ईयर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पास्ट कंपोजर ही हमें यूज करना है। ईयर स्टैंड्स फॉर कि यू हैव टू यूज एनी टेंस ऑफ पास्ट ओनली, ठीक है। चलो ईयर हो गया, मैंने कीवर्ड देख लिया। नाउ यू हैव टू लुक फॉर एनी अदर टेंस। इज देयर एनी अदर टेंस गिवन इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? सो लेट मी चेक। यस, इफ यू कैन सी, ओ अपले है ना, ये ओ अपले जो है वो टेंस दिया हुआ है मुझे। कौन सा टेंस दिया हुआ है, पास्ट कंपोज है। कैसे पता चला मुझे, ये अवुआर की कॉन्जुगेशन है ना, और ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है। तो चलिए मुझे ये पता चल गया कीवर्ड है, पास्ट का कोई टेंस यूज करना है, और पास्ट कंपोज पहले से ही दे रखा है।
अब मैंने आपको बताया था PQP तब आएगा जब हम फर्स्ट एक्शन की बात करेंगे, ठीक है, वो हमें ट्रांसलेट करके पता चलेगा। एंड देयर इज वन मोर ट्रिक, अगर आपको सेंटेंस में देजा दिया हुआ है, देजा, देजा का मतलब होता है ऑलरेडी, कोई काम या कोई एक्शन पहले से हो चुका है, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज PQP। अगर देजा इज रिटन PQP इन, you have to use PQP in that particular sentence, and if you're talking about future and deja is written, you have to use future anterior. Okay, so कैसे conjugate करते हैं PQP? बिल्कुल passive composer की तरह। You have to check this verb nausea comes in Dr. Mrs. von der Tramp. No, it's not a part of Dr. Mrs. von der Tramp. So let me conjugate it with avoir. So we are talking about the youngsters. AV बातिमो, बिल्डिंग को देख के कॉन्जुगेशन मत कीजिएगा, यंगस्टर्स को देख के करेंगे यंग, तो उसके लिए हमें एल्स वाला यूज करना पड़ेगा, आवे। वेयर टू यूज दिस देजा, देजा को दोनों वर्ब्स के बीच में पुट कीजिए। एंड नाजे का पास्ट पार्टिसिपल इज सिंपल, वी कट, सिंपली वी कट आर and we put an accent on E. No accords to be used. Why? Because we are conjugated, we have conjugated it with avoir only. Alright. चलिए, let's see the third sentence. Again, first rule is to check the keyword. Is there any keyword given? Yes. Mua prochain. Mua means month and prochain means next. Next month. Next month means you have to fill any tense of future. Okay. Now second is to check either any other tense is given. No other tense is given. Simple next month, so you have to use future simple बेटा, future anterior नहीं यूज करेंगे। उसके लिए दो sentences चाहिए हमें, दो actions चाहिए। फर्स्ट एक्शन की बात हो रही है तो ही हम future anterior यूज करेंगे। यहाँ पे एक ही एक्शन है, एक ही चीज दी हुई है, simply my parents will buy a new car next month। सिंपल, तो आपको सिंपल future यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? आश्रिते को एज इट इज लिखेंगे एंड देन यू हैव टू यूज ONT, avoir की एंडिंग्स, राइट। अशत्रों। अच्छा, आश्रिते वाले में, आश्रिते वर्ब जो है बेटा, इसमें एक्सेंट्स आते हैं, नू और वो को छोड़ के जो फर्स्ट ई है इसके ऊपर एक्सेंट्स आते हैं, सो यू हैव टू पुट दिस एक्सेंट ऑल्सो। बी वेरी वेरी केयरफुल while attempting these questions. Then fourth sentence is the children, the students। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कोई कीवर्ड है या नहीं। इज देयर एनी कीवर्ड गिवन? यस। औसीतोत को देखिए बेटा, अगर आप ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले कीवर्ड्स लर्न कर लीजिए। बार बार मैं बोल रही हूँ, कीवर्ड के बेसिस पे आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा, आप एलिमिनेट कर पाएंगे मुझे कौन सा तीनों में से टेंस यूज करना है। अगर ER लिखा है तो मैं फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर की किसी भी टेंस के बारे में नहीं सोचूंगी, प्रेजेंट के टेंस के बारे में नहीं सोचूंगी, मुझे सिर्फ पास्ट के किसी टेंस के बारे में ही सोचना है और उसी को यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर औसीतोत को, ये बेटा कीवर्ड होता है PQP का भी और फ्यूचर ऑन्टेरियर का भी। अब कैसे देखें, मुझे कैसे पता चलेगा? तो सेकंड स्टेप इसलिए मैंने बताया, अदर टेंस ढूंढिए वो कौन से उसमें रिटर्न है। सो मैंने देखा ये रहा आशेत्रों। आशेत्रों जो है बेटा फ्यूचर सिंपल में रिटर्न है, तो चांसेस हैं इसमें फ्यूचर ऑन्टेरियर आएगा। फिर भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स विल बाय द न्यू novels as soon as their exams will get finished. Okay, perfect. So पहले उनके एग्जाम्स खत्म होंगे तब वो नॉवेल्स को बाय करेंगे। सो वी हैव टू यूज फ्यूचर ऑन्टेरियर। नाउ हाउ टू फॉर्म दैट? फिनीर, अगेन डॉक्टर मिसेस का पार्ट नहीं है, सो और इसमें और में चेंज होता है औरों, एंड देन फिनीर का पास्ट पार्टिसिपल इज फिनी, औरों फिनी, दैट्स इजी। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, मुझे कीवर्ड ढूंढना है। सो इज देयर एनी कीवर्ड गिवन? यस। लास्ट, सम एंड देरनियर। देरनियर मीन्स लास्ट एंड सम एंड मीन्स वीक, लास्ट वीक, ठीक है। सो लास्ट वीक हो गया। कोई और अदर टेंस है? नहीं। सो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? पासिव कंपोजिट। अब ये जो है बेटा, ये प्रोनोमिनल वर्ब है और प्रोनोमिनल वर्ब जितनी भी हैं वो पासिव कंपोजिट में एत्र के साथ कॉन्जुगेट होती हैं। सो कैसे करेंगे? नू, देन यू हैव टू यूज सॉन्ग, ये एत्र की कॉन्जुगेशन है, और रॉ कॉन्ट्रे का पास्ट पार्टिसिपल, सिंपली वी कट आर एंड पुट एक्सेंट ऑन ई। नू प्लूरल, अकॉर्ड लगाना नहीं भूलना बेटा, यू हैव टू यूज एस, यू हैव टू पुट एस, ठीक है। चलिए, सिक्स सेंटेंस, अगेन वी फॉलो अवर steps. The first step is to check is there any keyword given. Let me check. Il follower will कौन से दोनों? No keyword is given. Now what to do? If no keyword is given ना,
यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो फालुआ इम्पर्सनल वर्ब है बेटा, जो सिर्फ इल के साथ ही कॉन्जुगेट होती है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में इल्फो. दैट्स इट. ओके, लास्ट बेटा अगेन the youngsters, is there any keyword given? Doesn't know the bad effects of less sleep. No keyword given. You can again use simple present tense. Don't get confused कि अरे दो present tense आ गए तो आ गए. Okay, so कोनेत्र को conjugate कर देंगे. न पा जरूर लगाइएगा. न को नेसेंट पा. That's it. So आपको इन 7 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने थे, आपकी चॉइस से. मुझे लगता है आप लोग इजीली कर पाएंगे. ठीक है, ट्रस्ट मी. टेंसेस वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ स्टेप्स फॉलो करो, कीवर्ड्स लर्न कर लो और सबकी फॉर्मेशंस लर्न कर लो. किसकी लर्न करनी है, एक्सेप्शंस किसकी लर्न करनी है. 4 इंपेरेटिव की लर्न कर लीजिए. फ्यूचर सॉम्पल के एक्सेप्शंस लर्न कर लीजिए, जो मैंने बोला 18 के अराउंड है, वो लर्न कर लीजिए सबसे पहले. ईजिली आप कर पाएंगे. ओके.